کوئی بے دین بد مذہب آپ کی قربانی میں شریک تھا تو ساری قربانی ضائع ہو گئی، دوبارہ کرنی ہوگی آپ کو۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قربانی کے تعلق سے ایسے مسئلہ جنہیں آپ کو جاننا ہر حال میں ضروری ہے، جسے سوال جواب کے ذریعے حضرت علامہ مولانا سعد الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آسان لفظوں میں سمجھائے ہیں، لہٰذا آپ ویڈیو کو پورا سنیں اور اپنی قربانی کو درست کریں، ساتھ ہی ساتھ رضائے مصطفیٰ ہب چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور کمنٹ کر حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین دینی معلومات کے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ۔ حضرت تمام سوالوں کا جواب دیں گے، سماعت فرمائے۔ اپنی قربانی چھوڑ کر کسی مرحوم کے نام سے قربانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو اسی کے نام سے کرنا ہوگی، اپنے نام سے۔ عموماً ہم دیکھا بعض گھرانے ایسے ہیں، بھئی ایک سال ہمارے نام سے ہوئی، ایک ساتھ والد کے نام پہ ہو جائے، ایک ساتھ بیوی کے نام پر ہو جائے، ایسا نہیں۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری، اور وہ بطور ایصال ثواب اپنے والد، اپنے دادا یا کسی کے نام کرنا چاہے تو دوسری قربانی لے یا دوسرا حصہ ڈالے، اپنی قربانی کو نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہو اور اس نے قربانی نہ کری تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے، دور ہو جائے ہماری عیدگاہ۔ اور فرمایا کہ ایام النہر میں جو 3 دن قربانی کے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خون بہانا یعنی قربانی کرنا اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اپنی طرف کی قربانی اگر اس پر واجب ہے تو اس کو کرنی ہوگی۔ جو قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کی گئی تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کسی صاحب نے پوچھا کہ جو قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جائے تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب یہ قربانی نفل ہے، بہتر تو یہ ہے ہر قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے اعزاء میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ ہاں کوئی صدقے اور واجب قربانیوں کے کسی نے کوئی منت مانگی کہ میں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، اس پوری قربانی کا صدقہ کرے گا وہ۔ نیت گوشت کھانے کی ہو تو کیا قربانی یا عقیقہ ہو جائے گا؟ وہ قربانی نہیں ہوگی، گوشت ہے، وہ گوشت حلال طیب ہے، آپ اس کو کھائیں۔ کسی کی بھی نیت جو ہے وہ قربانی یا عقیقہ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ کسی کی نیت اگر گوشت حاصل کرنے کی ہو تو کسی کی قربانی میں نہیں ہوگی۔ صاحب مال بالغ بچہ کا قربانی کس طرح ادا کی جائے؟ اگر بچے بالغ ہیں اور ان کے پاس ایام النہر میں اتنا مال ہو جائے کہ جس پہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو اس بالغ پر بھی قربانی ہے، اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر والدین کر دیں تو مستحب ہے۔ تو پیسے تو آپ ہی کے چنگل میں ہے نا، اگر وہ مالک بھی ہے تو پیسے لیں اس سے۔ اور دونوں میں نے مسئلہ پہلے بتا دیا نا، اگر اس سے آپ پیسے نہیں لیتے اور اس پر قربانی واجب، آپ اس کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرف سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو بتائیں۔ اور اگر اس کے پاس ہیں پیسے تو آپ اس سے پیسے لیں، بالکل لیں، اس سے کہیں کہ بھی آپ قربانی کریں، جی ہاں، پیسے نہ بھی دے وہ فرض کریں آپ کو، لیکن اس کو مسئلہ ہی بتا دو کہ بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ پہ قربانی واجب، اتنا بتانا تو اس کو ضروری ہے نا مسئلہ۔ حصے دار میں بد مذہب شامل ہو جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو بتائیں کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو اب کیا پوچھیں گے جب پتہ ہی نہیں آپ؟ ہاں، اگر قربانی ہونے کے بعد پتہ لگا کہ کوئی بے دین بد مذہب آپ کی قربانی میں شریک تھا تو ساری قربانی ضائع ہو گئی، دوبارہ کرنی ہوگی آپ کو۔ اس لیے جانچ پڑتال کر کے لوگوں کو قربانی میں شریک کیا جائے، وہ اپنے مسلک کے ہوں، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔
ऊंट की उम्र हमारे नज़दीक 5 साल है, और गाय से मुतालिक जिसने उसकी नौएं, मसलन भैंस या भैंसा या गाय या बैल, इसकी उम्र पूरी 2 साल होनी चाहिए। बकरा और बकरी, इनकी उम्र पूरी 1 साल होनी चाहिए। दुम्बा अगर देखने में फरबा हो और देखने में ऐसा लगे जैसे साल भर का हो, तो तब उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, वो भी दुम्बे की। इसमें इतनी एहतियात बरतनी चाहिए कि 2 साल में अगर जैसे किसी ने खुद गाय पाली या बैल पाला, वो देख रहा है कि 10 ज़िलहिज्जा को उसकी उम्र 2 साल में 1 दिन कम है, तो 10 तारीख को कुर्बानी नहीं होगी, 11 तारीख को कुर्बानी होगी, इसलिए कब उसके 2 साल मुकम्मल हो गए। इसी तरह बकरा बकरी जो खुद लोग पालते हैं, उनको मालूम है इसकी उम्र क्या है। अगर उसमें 1 दिन कम है या 2 दिन कम है तो तीसरे दिन कुर्बानी होगी, 1 दिन अगर कम है तो दूसरे दिन होगी। तो इसलिए इसमें जानवर खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाए और जानवर बेचने वालों पे भरोसा नहीं किया जाए। जी हाँ, ये तो कोई फरबा जानवर हो तो कस्में भी खा लेंगे, साहब ये लीजिए वो लीजिए, ठीक। आपको ताज्जुब होगा, ऐसे ऐसे हमारे पास केस आए कि नकली दांत लगा दिए और बाद में जब वो चारा खाने लगा तो दांत गिर गए। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जानवर जब लिया उन्होंने, तो लेने के बाद पकड़ धकड़ में सींग जब निकला तो पता लगा कि एल्फी से सींग जोड़ा गया था। ये एल्फी कंपनी को भी मालूम नहीं हुआ कि एल्फी हमारी इस काम में भी काम आती होगी कि जिससे कुर्बानी के जानवरों के सींग जोड़े जाएं। एल्फी से सींग जोड़ देते हैं, उसका सींग अगर कट जाए तो उसमें क्या होता है, उसको कहते हैं मीख। सींग जो है एक अलग से जब टूटता है तो वो बिल्कुल अलग होने के बाद उसकी जो बुनियाद है वो नज़र आ जाती, तो उस पर जोड़ देते हैं सींग। तो अगर मेंग तक सींग टूट जाए जानवर की तो उसमें आधा ऐब हो गया, यानी 2 सींग हैं तो आधा ऐब होने की वजह से उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो जानवर जो है वो देख कर लिया जाए। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा के बाद खाल उतारते वक्त सर जिस्म से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये तो सारे जानवर के सर जिस्म से जुदा होते हैं जब खाल निकाली जाती। मसला उसमें है कि ज़िबा करते वक्त गर्दन को अलग करना, वो मसला अलग है। लेकिन ये मसला कि जब जानवर ज़िबा हो गया, अब इसकी खाल वगैरह उतारने के बाद में उसके आज़ा और उसकी गर्दन जो है उसको अलग करने में कोई हर्ज नहीं। जी, कुर्बानी के जानवर का बहता हुआ खून हाथ पैर पर लगाना कैसा है? बाज़ लोग इसे दीवारों पर लगाते हैं, मरीजों पर लगाते हैं, ऐसा करना कैसा है? ये तो कुरान मजीद फुरकान हमीद से नस है कि बहता हुआ खून हराम है। बाज़ लोगों ने इन दिनों में मुझसे पूछा कि ऊंट का खून जो निकलता है उसको लोग अपने बदन पे मलते हैं, पैरों पर मलते हैं। तो जब बहता हुआ खून शरन हराम है, जो नस्से कतई से साबित, तो उसका बदन पर मलना कोई माने नहीं रखता। एक बात तो ये, और दूसरी हदीस शरीफ में सरीहन ये फरमाया कि हराम में शिफा नहीं है। अब इन दोनों बातों को जमा किया जाए, अगर बहता हुआ खून हराम जैसा कि नस्से कतई से, तो अब अगर किसी बीमारी या किसी उसमें उसको बदन पर मलना तो जाहिर है कि ये भी बिल्कुल बेकार। कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है क्या? हाँ, जहां भी तकर्रुब का मसला हो, यानी जिसमें इबादत का तसव्वुर हो, सदक़े का तसव्वुर हो, तो ये चूंकि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी हुकूमत इसमें नहीं, ये सारा निजाम चूंकि इनफरादी तौर पर चल रहा, इसलिए ऐसा कोई सदका या कोई चीज गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, मुसलमान ही को दी जाए। कुर्बानी का गोश्त हो या अकीके का गोश्त हो या सदका हो, सदक़े फितर हो या ज़कात हो, सदक़े वाजिबा हो, ये सब मुसलमान ही को दिया जाएगा। किसी मरहूम के नाम से कुर्बानी की जा सकती है क्या? सबसे पहले तो आप अपनी कुर्बानी करें, ऐसा नहीं होगा। बाज़ हमने लोगों को देखा कि जिनके पास एक कुर्बानी की इस्तेताअत वो क्या करते हैं, एक साल अपनी कर देते हैं, एक साल बेगम की कर देते हैं, एक साल अब्बा की कर देते हैं, एक साल अम्मा की कर देते हैं।
जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी करना जरूरी। एक बात, अब आप बतौर एहसान अपने वालिदैन को इसाले सवाब के लिए अगर कुर्बानी करना चाहें तो पहले आप अपनी कुर्बानी करेंगे, और अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो वालिदैन या किसी भी अपने अजीज की कुर्बानी कर सकते हैं। हमारे फतावे की किताब में यह भी है कि कोई अगर साहिब सरवत हो तो वो अपनी कुर्बानी करे और एक हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करे। उसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत इसको हमातन गोश समात फरमाया गया, जब आदमी कुर्बानी करता है ना तो उसके एक एक बाल के बदले नेकी, और कल कयामत में पुल सिरात वो अपने साहिब को बिठाकर पुल सिरात की राह तय कराई, वो बेशुमार उसके फजाइल। क्या कोई अपने दोस्त की ओर से बिना उसकी जानकारी के कुर्बानी कर सकता है? नहीं नहीं, उस दोस्त की तरफ से कुर्बानी करता है, दोस्त ने उसको कहा है कि मेरा हिस्सा डाल दो इसमें, हाँ, तो इसमें शर्त यह है कि वो इजाजत दे, उसको वकील बनाए कि मेरी कुर्बानी आप करें। अब अगर कुर्बानी करेगा तो उसका वाजिब उतर जाएगा, और अगर उसके बगैर इजाजत के इसने कुर्बानी की तो नफल तो हो जाएगी मगर उसके जिम्मे से वाजिब अदा नहीं होगा। भाई ये तो आप उससे कहिए ना कि उससे मांगे पैसा लें आप, तो आप अगर इतने मालदार हैं तो हम आपको 100 लिस्ट और दे देते, उनके भी कर दीजिए भाई, 100 आदमी की लिस्ट आपको देते हैं अगर आप इतने हाथम ताइए। मसला ये है कि काई के लिए कर रहा है वो आदमी, या मोहताज है या गरीब है तो उस पर कुर्बानी नहीं, और अगर वो मालदार है साहिब सरवत तो उसे कुर्बानी का हिस्सा लें आप। और बतौर एहसान भी चलिए आप करना चाहते हैं तो उसके इल्म में हो, उसको बताया जाए कि मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी करूंगा तो वाजिब अदा हो जाएगा। भाई हम तो इतना ही मसला बताएंगे ना, बाकी आप दोनों आपस में निमट लीजिए। अगर किसी ने कुर्बानी की है लेकिन वह बहुत गरीब है तो क्या वह अपने परिवार के लिए पूरा गोश्त रख सकता है? हाँ, उसमें देखिए, एक तो अगर वालिद ने या वालदा ने वसीयत की कि मेरी तरफ से कुर्बानी करें, या मन्नत की कुर्बानी हो तो उसका गोश्त नहीं खाएगा, उसका गोश्त सदका करे। और यूं ही बतौर एहसान किसी की साले सवाब के लिए कुर्बानी की तो ये कुर्बानी जायज है और उसका गोश्त आप भी खा सकते हैं। और बेहतर यह है कि सारे गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक मसाकिन गुरबा और फकरा को दिया जाए, एक अपने अईज़ा अकरबा को दिया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखा जाए। मुताखरीन फुक़हा में सदरुल शरिया हजरत अल्लाह मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में यह भी फतवा दिया कि कोई आदमी अगर कुर्बानी करे, उसका अपना कुंबा घरेलू अगर इतना ज्यादा है उसको रखकर खाने में भी कोई हरज नहीं है, कि सारा घर भी अगर रख ले उस गोश्त को तब भी कोई शरन हरज नहीं। ठीक है ना, खत्म करते हैं। आपने आखिर तक सुना, यकीनन आप में दीनी इल्म हासिल करने की जज्बा है। आप इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वह भी दीन सीख पाएं और इस कुर्बानी के महीने में अपनी कुर्बानी को दुरुस्त कर पाएं।